ऑलराइट, देखो इसमें the first thing which we have discussed 1.2 and 1.3. 1.2 is related to motion, 1.3 is related to mass and weight, and 1.4 is related to density. Now density, you will be asked in the exam, you have to define what is density. So definition of density is given over here, you just have to memorize this. Here density is mass per unit volume, nothing more. तो ये आपको सिंपली क्या करना है, ये देखना है बस. ये 1 मार्क के लिए आएगा, either for 2 marks or whatever the case is, लेकिन you will be given with this type of definition in the exam if you have a density question. And most of the times your exam में what he does is के density, mass, weight, forces, इन सब को relate करके question बना देता है. ठीक है. Now there is basically, देखो जब भी पर लिखता है it means it's divided. So basically this is mass divided by volume. लेकिन we do not write mass divided by volume. ठीक है, वो तो समझने के लिए. So mass per unit volume का मतलब unit means 1. So mass per unit volume means mass divided by volume, and therefore ये इसका formula है. देखो जो main चीज है the formula is written over here. ठीक है, मैं अगर यहाँ पे formula लिखूं, one thing which has to be understood over here, density यहाँ पर है mass and there is volume. अब देखो mass जो है its SI unit is kg, kilograms. ठीक है, so this is kg, ये mass का unit numerator में आ गया, and in the denominator you have volume. What the because volume is basically basically dimension is related to dimension, तो इसका जो SI unit है that is meter cube. So density का जो unit बनता है that is kg per meter cube, और इस तरह भी लिख सकते हैं kg. Now there is another, आप जो moles पढ़ते हो in your O levels chemistry, उसमें molarity होती है. ठीक है, molarity is basically moles divided by concentration. तो it is again related to density, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है. लेकिन मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि वहां पे भी density का concept आता है. But there is another unit of density, that is कि अगर mass kg में है, volume will be in meter cube. But if the mass is in grams, तो volume meter cube में नहीं हो सकता, volume will be in centimeter cube. ये बात समझनी है. So this is basically gram per centimeter cube or GCM minus 3. So there are two units of density. ठीक है, 2 units of density. Kilogram per meter cube or gram per centimeter cube. Now you will be asked in the exam कि आपको क्या करेगा, mass जो है it will be provided in kg, but volume will be in centimeter cube, so you will have to convert that into meter cube. ये भी करने को most of the times आ जाता है. Okay, and if I look at other way, mass आपको grams में देके volume meter cube में दे देता है. So you have to be careful कि mass should be, if mass is in grams, तो volume should be in centimeter cube, क्योंकि उसकी length most of the times वो regular object ही होता है. irregular object के लिए आपको इस तरह नहीं कहेगा. You will have to use the formula. We will do questions on it. लेकिन इसमें ये चीज है. ठीक है, I will do questions on it. You have to be careful about units. ठीक है, बस यही चीज होती है इसमें. Now for the second part, he's asking you describe how to determine the density of a liquid. देखो density of a liquid, अभी मैं सिर्फ density of a liquid पे चलता हूँ. देखो density of a liquid measure करने के लिए मुझे क्या करना है,
मैं अगर इसमें थोड़ा सा आपको कहूं, let's suppose if I have a miring cylinder over here, ठीक है, and I have a miring cylinder over here, और यहाँ पर there is water over here, और यहाँ पर जो है there is oil over here, ठीक है, तो why oil is floating on water? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है why oil is floating on water? मिक्स नहीं होता ना ये, oil does not mix. Yes. देखो सर वाटर की डेंसिटी कम है. yes, water की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए नीचे है. So oil is Sir, one at a time. जी बोलो. जी बोलो. sir, कह रहा oil की density less होती है. कौन है ये? कौन था? कौन बोल रहा था? इबा. Right, Iba. Iba, you're right. You're saying oil has less density, right? This is what you're saying. Okay. So oil is less dense. अब मैं आपको एक बड़ी मजे का फैक्ट बताता हूँ. जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, जो या आप कहो जो 1 साल या 4 years, जो बेसिकली इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर उनको ये नहीं पता होता व्हाट इज द फियर ऑफ वाटर. इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम तो आप डूब जाओ, यू कैन ड्राउन, राइट? लेकिन हमें तो पता है ना, हमें स्विम नहीं करना आएगा, हम हाथ पांव चलाएंगे तो उसकी वजह से हम पानी के अंदर सिंक कर जाते हैं. वरना हम पानी के अंदर सिंक नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जो बॉडी है इट इज लेस डेंस देन वाटर. तो जो वेस्ट में जो कंट्रीज हैं, देयर आर सर्टेन कंपनीज एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु ट्रेन बेबीज हाउ टू स्विम. उनको क्योंकि पता नहीं होता बेबीज को, एंड दे बस उसको बस ट्रेन करते हैं बच्चे को दैट यू डोंट हैव टू मूव हैजर्डली, क्या आपने हाथ पांव नहीं हिलाना. अगर आप हाथ पांव नहीं हिलाओगे ना तो यू विल फ्लोट ऑन वाटर, आपकी बॉडी फ्लोट करेगी. अगर आप हाथ पांव हिलाओगे, इफ यू डोंट नो हाउ टू स्विम, तो आप गिर जाओगे. इसी तरह इन पाकिस्तान इफ समवन हैज ट्रैवल्ड टू कलर कहार, वहां पर जो हमारी सॉल्ट रेंज है, वहां पर ऑयल वाटर जो है ना, इट हैज अ लॉट ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड इन इट. उसकी वजह से वाटर से ज्यादा उसकी डेंसिटी हो जाती है सॉल्ट वाटर. एंड इफ यू ट्राई टू जंप इन दैट वाटर, अगर आप उसमें हाथ पांव भी हिलाओ, कुछ भी करो, यू विल नॉट ड्राउन. उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आपको पानी के नीचे जाने ही नहीं देता. ठीक है. सो इट मीन्स एनीथिंग which is less dense, it will be above that thing, whether that be a solid or a liquid. अब यहाँ पे तो बात आ गई कि I have to measure the density of a liquid. मैंने एक general concept दिया है, but if I have to measure the density of a liquid, I will erase this and what I will do, ये एक miring cylinder है. It has obviously markings. इसमें markings होती हैं like this. It can be any liquid. ठीक है. और यहाँ पे क्या आप करोगे, you will have an electronic balance with you. ठीक है. यहाँ पे electronic balance होगा आपके पास, और यहाँ पर what you will do, you will take hold of a beaker. एक beaker लोगे and the beaker will be empty. This beaker will be empty and you will obviously remove zero error. इसको zero कर दोगे electronic scale को, and when there will be zero over here, so you will place this the speaker over here on the electronic balance. So you will measure, पहला क्या है, mass of empty beaker. Now the next step will be, you will have to, मैं suppose करो आपके पास कोई unknown liquid है, बहुत ज़्यादा है, जितना भी है. I'm just basically assuming कि हम यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी quantity है, उसकी इतना ज़्यादा नहीं है,
कि मैं कहूँ पूरे तालाब की डेंसिटी बताओ, ऐसा नहीं है। अगर पूरे तालाब में वाटर है तो आई कैन टेक अ चंक आउट ऑफ इट एंड कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम दैट चंक। ऐसा नहीं है जी वो डेंसिटी पूरे तालाब की फर्क होगी और मैं जो कैलकुलेट करूँ फर्क। इट वेरीज, डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लिक्विड। इफ द लिक्विड चेंजेस, डेंसिटी चेंजेस। जिस तरह मैंने आपको ऑयल की एग्जांपल दी ना, ऑयल और वाटर की डेंसिटी बोथ आर लिक्विड्स, बोथ आर इमिसिबल लिक्विड्स, बट because they do not mix with each other, तो इसलिए they have different densities. So density depends upon the nature of the matter, ठीक है, and the material. So if the material is same, if the material is different and the matter is same, let's suppose oil and water, तो oil की density water से फर्क होगी, ठीक है. So the first step in measuring the density of a liquid alone is you will have to take certain instrument. मैंने यहाँ पर beaker लिया है. मेरी ड्राइंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बहुत अजीब सी है, जिस तरह बन रही है बस समझाने के लिए कर रहा हूँ. अब यू विल टेक नोट ऑफ द मास ऑफ एन एम्प्टी बीकर. मैंने नोट कर लिया जी, सपोज किया, मैंने कहा जी मास ऑफ एन एम्प्टी बीकर वाज 50 ग्राम्स, ठीक है. मैं एक्स वाई जेड नहीं कर रहा, आई कैन सिंपली जनरलाइज द फॉर्मूला. मैं रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा आपसे. What I want is that you have to learn the concept. This is very straightforward और बहुत आसान चीजें हैं, and this will be used in ATP as well. अब the next step would be keep the beaker on this, ठीक है, on this electronic balance. Now you will have to pour a liquid in this. If you would pour liquid in this measuring in beaker, तो ये इस तरह की मतलब मेरे पास आ गई चीज, right? So what happens is कि मेरे पास mass of empty beaker पहले था, जैसे ही मैंने liquid इसमें डाला और रीडिंग रुक गई एक जगह पे जाके, so I noted down the reading. जब मैंने रीडिंग नोट डाउन कर ली, आई एम अज्यूमिंग कि चलो जी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, mass of beaker plus liquid, so इसको कह दो 250 ग्राम. तो अगर आप इसमें से mass of liquid फाइंड करना चाहो, you will basically you will subtract both. उसमें से बीकर का वेट mass माइनस कर दो. देखो नोट करो, this is in grams. Mass of beaker and liquid minus mass of beaker. So this will be 250 minus 50. So you will have 200 grams of liquid with you in this experiment. अब आप क्या करोगे? You will pour the same amount of water जो यहाँ पर रखा है. You will pour the same amount of water in this measuring cylinder. आप बीकर से वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, but the point is बीकर से वॉल्यूम तो नहीं मेजर किया जाता, उसकी वैल्यूज होती हैं यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन बीकर हैज अ वेरी लेस एक्यूरेसी. ये चीजें एटीपी में पूछी जाती, तो ये बार बार बताता जाऊंगा बीच बीच में. यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन द क्लास. अब I will use measuring cylinder because it has a greater accuracy. इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ ना ब्यूरेट होता है, पिपेट होता है, ब्यूरेट की measuring cylinder से ज्यादा accuracy होती है and पिपेट की इससे ज्यादा होती है, ब्यूरेट से भी ज्यादा होती है, ठीक है. So what I will do, I will now hold the beaker and I will put this liquid in this measuring cylinder. अब ये जो measuring cylinder है, मैं यहाँ पर सपोज करो ये इस तरह. Now you have to be careful. ये जो मैंने लिक्विड डाला है, सपोज करो ये आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब तक, ठीक है. अब देखो यहाँ पर there are two types of meniscus. meniscus दो तरह के होते हैं. One is upper meniscus and the other is lower meniscus. ठीक है, ये आपसे पेपर में इस तरह पूछता नहीं है, ठीक है, बट ये बात याद रखो, your eyesight should be at this level. ठीक है, ये जो ये लेवल है ना, ये लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल पे होना चाहिए. ऐसा नहीं यहाँ से रीड करो, ऐसा ना करना, यहाँ से रीड नहीं करना, यहाँ से नहीं करना. यू विल हैव टू रीड फ्रॉम दिस कर्व पॉइंट, ठीक है.
ये चीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेनिस्कस का लोअर है। अब अगर ये लोअर मेनिस्कस है तो मुझे यहाँ से पता चल गया दिस वैल्यू इज बेसिकली 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूमीटर क्यूब में तो नहीं मेजर करता, मेजरिंग सर्किट इट मेजर्स इन सेंटीमीटर क्यूब। सो मुझे ये पता चल गया और मैंने कहा कि if you basically observe this side तो parallax error आएगा, right? So there are so many questions in paper 4, the ATP paper, and the paper 1 and paper 2 as well कि parallax error किस तरह avoid किया जाता है। पेपर 4 में तो बहुत दफा पूछता है, लेकिन पेपर 2 में भी पूछा जाता है। Now coming to the point, now I have the mass of the liquid and I have the volume. Now I have the formula. The formula of density is mass divided by volume. So मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, मैं अब इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूँ, दैट इज ये बेसिकली इसको कहते हैं रो। ठीक है, now mass is denoted by small m and volume is denoted by capital V, not small v. Small v के लिए हम speed denote करते हैं, right? Notation is very important, मैंने शुरू में बताया। Now mass is 200 grams and volume is 50 centimeter cube, so I'm getting 4 grams per centimeter cube. You have to be careful, देखो mass grams में था, volume centimeter में cube में था, तो gram per centimeter cube में है। ठीक है, so this is true for any liquid if you want to determine the density of any liquid. Any questions until now? No, Any sir. question? Okay. For the second part, अब देखो वो कहता है describe how, देखो describe है तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आप if you have learned the concept, if you have understood it completely, तो आप इसको अपने own words में लिख सकते हो। मैं अगर आपको यहाँ sentences लिखना शुरू कर दूं और मैं कहूँ इसको cram कर लो, तो आप नहीं याद कर सकोगे। There are so many subjects and there is so much work, आप भूल जाओगे। ठीक है, learn the concept, जिंदगी आसान करो अपनी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं describe how to determine a density of a liquid, हो गया density of a regularly shaped solid। ठीक है, अभी देखो ना इसने आगे ये भी कहा हुआ है including appropriate calculations। ठीक हो क्या? Now I will of a regularly shaped solid। अब देखो regularly shaped solid की मैं example लेता हूँ। Let me make a cube। देखो ये important है बात। अक्सर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना इसमें गलती कर जाते हैं कि वो वॉल्यूम बाय डिस्प्लेसमेंट से करते हैं। बट अगर मैं फॉर इंस्टेंस इट कैन बी अ स्फीयर, अगर मैं यहाँ पे स्फीयर बनाने की कोशिश करूं, आई डोंट थिंक बन सकेगा। नहीं, स्फीयर आप इसको ही समझ, ठीक है, यही है स्फीयर, 3D समझ। नाउ इट कैन बी अ क्यूब और अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूब इस तरह होता है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज रेगुलर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, and that is basically also used in the topic discussed in maths known as mensuration. Volume of sphere is 4/3 pi r cube। आपको फॉर्मूले फिजिक्स में नहीं देगा, so you should learn the formulas. Volume of cuboid or cube is length into width into height। ये इसका यहाँ पे इसका रेडियस होता है, ये सेंटर है, दिस इज इट्स लेंथ, ये विड्थ है और ये हाइट है।
Now ये है to measure the dimensions of these length, width and height, you can either use meter rule. अगर ये बहुत छोटा है तो आप वर्नियर कैलिपर से भी कर सकते हो, बट measuring tape से भी कर सकते हो. It's up to you. So you will have to measure. You will have to measure the dimensions, the required dimension. अब cuboid में you will have to measure length, width and height to calculate its volume. For sphere आप इसकी length, width, height तो नहीं करोगे ना, because to calculate the volume I just need radius. Radius के लिए what type of instrument is used? कोई बता सकता है? मौजम आप बता सकते हो? If I want to calculate the volume of sphere, तो उसका जो radius है sphere का मैं कैसे किस डिवाइस से, या सॉरी डिवाइस कह रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट से यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूँ रेडियस. जी बच्चे, एनीवन बताएं. नो वन. मौजम, आर यू देयर? वर्नियर कैलिपर ठीक है, वर्नियर कैलिपर से भी हो जाता है. ठीक है, वर्नियर कैलिपर आप यहाँ पे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से भी कर सकते थे. वर्नियर कैलिपर एंड डिवाइड. ये देखो अरीबा का आंसर सही है. उसकी वजह ये है कि इफ यू प्लेस दिस स्फीयर इनसाइड अ वर्नियर कैलिपर, जो उसके जॉज होते हैं ना, वर्नियर कैलिपर के जो जॉज होते हैं वो इस तरह होते हैं. ये इसके जॉज हैं. तो वर्नियर कैलिपर आपको ये डायमेंशन बताएगा. दिस इज बेसिकली द डायमीटर. सो यू हैव टू, ये लेंथ बता रहा है वर्नियर कैलिपर, so you have to divide this length with 2, तब आपके पास वो आएगा, वरना वो डायमीटर देगा. ठीक है. So you have to measure the required dimensions using appropriate instruments. ये अब आपको पता होना चाहिए कौन सा required instrument है. Now you will use electronic balance to measure its mass. ठीक हो गया, ये mass में ठीक हो गया. Now you will have to use basically the electronic balance. अब mass आपके पास आ गया, you have the volume, you can use the formula for density, that is mass over volume. Mass आपके पास grams में होगा, volume will be in centimeter cube, because either you use a meter rule or a vernier caliper or any other instrument, वो आपको centimeter में ही देगा, right? So density will be in kilograms per centimeter cube. Okay, so this is how you calculate the density of a regular shaped solid. It can be any solid, और वो जो solid होगा, you will have to use the formula for that object's volume. अगर cube है, cuboid है, तो length into width into height है. अगर sphere है तो ये cylinder है, तो cylinder का formula होता है, I will write cylinder over here. कोन भी हो सकती है, लेकिन ये इसका रेडियस होता है, ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस है. वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट? ये वॉल्यूम्स पता होने चाहिए.
So this is how you calculate the density of a regularly shaped object which is solid. Now the last part is you should know how to determine the density of an irregularly shaped solid which sinks in a liquid. जो float करता है उसकी नहीं कर सकते आप, float नहीं करेगा। कोई भी irregular shaped object है जो float कर रहा है किसी liquid के ऊपर, आप उसकी density नहीं है आपके syllabus में, ठीक है? So you don't have to worry के मुझे ये ऐसा तो नहीं पूछेगा कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक ना करे, फ्लोट करे और इरेगुलर हो तो मैं उसकी डेंसिटी कैसे फाइंड करूं, सिलेबस में रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो उस पर दिमाग खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, जब पूछे ही नहीं जाए। अगर वैसे पूछोगे फॉर जनरल इंफॉर्मेशन आई कैन टेल यू, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर है। अब देखो इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ एन irregular object. The density of an irregular object is basically what you will need. You will need a known volume of liquid in a miring cylinder. ठीक है? And आप क्या करोगे? आपके पास यहाँ पर ये इस तरह है, मैं इसके स्टेप्स बाद में बना दूंगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, यू विल नीड एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और उसका मैथ नोट करना होगा इरेगुलर ऑब्जेक्ट। यूज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस to measure the mass of an irregular object। ठीक है, तो ये क्या है, एंड फिर क्या करोगे आप, ये करोगे ड्रॉप द irregular object and note drop the irregular object inside the liquid and note down the change in volume। अब मैं ये डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये irregular object, ये आपने इसको जो है ना यहाँ पे रख दिया, आपने जो है ना इसमें रख दिया, ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, मैंने एक अजीब सी चीज है, मैंने उसको इस तरह रख दी। ठीक है, व्हाट आई विल डू, इसका जो अननोन ऑब्जेक्ट है, इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला नहीं है बिकॉज इट इज इरेगुलर, सो आई विल नोट डाउन इट्स मास। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमें वेट नहीं बताता, मास बताता। ठीक है, तो इसकी 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 वैल्यू नोट डाउन कर ली। द नेक्स्ट स्टेप वुड बी you should have a known amount of liquid, inside a miring cylinder। ठीक है, known amount of liquid, this is your first step। second step आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर लें, पहले आगे पीछे। now the point is, अब यहाँ पे I have a known amount of liquid, मैं अगर इसकी वैल्यू बताऊं, चलो मैं इसको कहता हूँ जी, इसका मास मेरे पास आया, मास मेरे पास आया 50 ग्राम्स। known amount of जो वॉल्यूम है, volume of liquid is what you can say, it is चलो 50 centimeter cube कर लो। ठीक है, now what I will do, I will drop this irregular object in this miring cylinder containing the liquid। उससे
वॉल्यूम का लेवल जो है लिक्विड का इट विल राइज, ठीक है। सो इफ दिस इज द केस, मैं थोड़ा सा इसको जूम्ड इन करके बना दूंगा। अब ये ना समझिएगा कि मैंने यहाँ पे छोटा बना दिया, वहाँ बड़ा बना दिया, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इस तरह ये बेसिकली दिस इज माय ओरिजिनल, या यू कैन से ओल्ड वैल्यू जो 50 सेंटीमीटर क्यूब थी, एंड दिस इज माय न्यू वैल्यू विच इज 150 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें ये मास पड़ा, ठीक। देखो दिस इज नोन एज वॉल्यूम बाय डिस्प्लेसमेंट। देखो इसने यहाँ कहा हुआ ना वॉल्यूम बाय डिस्प्लेसमेंट, वो यही है ना। जिस तरह अगर फॉर इंस्टेंस आप स्विमिंग पूल में छलांग मारोगे, पानी बाहर क्यों आएगा? बिकॉज आपकी जो बॉडी स्विमिंग पूल में गई है, उसने वॉल्यूम आपकी बॉडी ने लिक्विड से डिस्प्लेस कर दिया। जहां जहां लिक्विड आपकी जहां बॉडी थी वहां पहले लिक्विड था, वो लिक्विड अब कहाँ जाएगा? वो लिक्विड या तो अगर उसमें कैपेसिटी है स्विमिंग पूल के अंदर तो वो उसका लेवल बढ़ा देगा, वरना वो अगर बाहर आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नोन एज बेसिकली इरेगुलर ऑब्जेक्ट का किस तरीके से करते हैं। अब इसका मतलब है द चेंज इन वॉल्यूम, जो मेरा चेंज इन वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम ये इतना है, राइट, दिस इज माय चेंज इन वॉल्यूम। And the change in volume is 150 minus 50, 100 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज है वॉल्यूम। और ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का चेंज आया है, दैट इज ड्यू टू दिस इरेगुलर मास। इट मींस कि इस इरेगुलर मास ने 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस किया। इट मींस इसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, that is density is equals to mass over volume. Mass मेरा जो है it's 50 grams and the volume is 100 centimeter cube, so 150. So this will be 1 and this will be 3, so I will be left with 1/3 gram per centimeter cube, और 0.33 भी लिख सकते हो, 0.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल दिखाने के लिए some maths में। So this is what you will be required in the exam। इसी तरह पेपर में देता है चीजें, most of the times आपको 3 मार्क्स के लिए कह देगा describe the procedure of measuring the density of an irregular object। You just have to write each and everything जो मैंने जिस तरह पढ़ाया है। और irregular object के लिए भी इसी तरह आ जाता है, calculations आ जाती हैं। So ये चीजें हैं, this is what is required from you in the exam, ठीक है। So I will stop over here।